Hello everyone, in this video we are going to cover NCERT Exemplar Chapter 2 Polynomial, right? In today's video we will cover its first exercise. As we know that in this chapter we are having three main topics. The first one is geometric meaning of the zeros of polynomial, right? What does it mean? The zeros of a polynomial px are precisely the x coordinates of the point where the graph of y, that is px, intersect x-axis. What is the geometrical meaning of a polynomial means? जब आप उस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करता है उन पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, राइट? अगर आपने कोई भी पॉलिनोमियल ड्रॉ किया है, जैसे आपने गिवन लीनियर पॉलिनोमियल ड्रॉ किया है तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट करेगा. जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट will be its zero, right? If we are having a quadratic polynomial, you will get parabolas. Maximum they will intersect x-axis at 2 points, right? Then the x coordinate of these points will be the zeros of the given polynomial, right? What does it mean? Metrical meaning of zeros mean the zeros of a polynomial px are precisely the x coordinates of the point. उन points का x coordinate where the graph of y is equal to px intersects x axis. यहाँ पे वो ग्राफ x axis को intersect करता है उन points के x coordinates. उसके क्या होते हैं? जीरोस होते हैं. जीरोस का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जिसको आप अपनी पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो वो उस पूरी पॉलिनोमियल को जीरो बना देगी. दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ अ polynomial. Now let's move on the next one topic, relationship between the zeros and the coefficients. This is the second topic of this chapter, polynomial, relationship between the zeros and the coefficients. In linear polynomial we are having only one relationship, that is by using its coefficient directly we can find out its zero. X is equal to minus b upon a. We have only one zero and one relationship, right? In quadratic polynomial degree 2 and we are having two zeros maximum and two relationships are there. One is sum of zeros, alpha plus beta is minus b upon a, alpha into beta is c upon a. Next one is cubic polynomial, its degree will be 3 and how many zeros maximum? 3 zeros will be there and three relationships exist here. First is sum of zeros, sum of product of zeros taken two at a time, and the third is product of zeros. Alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a. Sum of zeros taken two at a time is c upon a and product of zeros is minus d upon a. The third main topic from this chapter is division algorithm of the polynomial, right? Division algorithm means when we will divide two polynomials, then what can be the remainder, what can be the quotient, how we can write it. Px is the dividend, gx is the divisor, qx is the quotient and rx will be the remainder. Degree of dividend is always greater than the degree of divisor. As px is the dividend and gx is the divisor, degree of px is always greater than the degree of gx. When we will divide them, we will get one quotient and one remainder. Remainder either can be 0. If remainder is 0, it means the divisor is factor of the given dividend polynomial, right? अगर तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाता है तो ये जो डिवाइजर है ये गिवन पॉलिनोमियल का क्या बन जाता है? फैक्टर बन जाता है. इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन how we came to know we got our remainder or not? How we came to know? Degree of remainder is always smaller than the degree of divisor. जो रिमाइंडर की डिग्री रहती है उस डिवाइजर की डिग्री से क्या रहती है? छोटी रहती है, राइट? यही 3 टॉपिक्स थे इस चैप्टर में. इन सबकी वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड हैं, यू कैन चेक. If you have any doubt, you can watch that videos again, right? In NCERT exemplar we know that हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास MCQs होते हैं, सेकंड में रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, थर्ड में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं मैक्सिमम, और लास्ट एक्सरसाइज में हमारे पास 4 मार्क्स के या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं.
तो चलिए स्टार्ट करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज एंड इन दिस एक्सरसाइज वी आर हैविंग ओनली MCQs. तो लेट्स स्टार्ट. Before starting with our exercise, we are having these two examples. Let's discuss very good questions. We have, if 1 0 of the quadratic polynomial, this is the quadratic polynomial, is 2. Its 1 0 is given 2. This is a quadratic polynomial. Then the value of k is. Then you have to find out the value of k. As we know that x square plus 3x प्लस k इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट. अब आपने इसमें से एक जीरो आपको गिवन है, मीन्स हमें अल्फा गिवन है, अल्फा इज 2, बीटा हमें नहीं पता है, वी डोंट नो बीटा, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. बीटा हमें पता नहीं है और हमें k की वैल्यू निकालनी है. तो बेटा इसमें ना हम जो कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं वो कैसे करते हैं ये क्वेश्चंस. अब देखो, जो भी हमने पीछे अभी इसके टॉपिक्स डिस्कस करे हैं उसमें से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप्स भी डिस्कस किए थे कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है. तो वी विल यूज दैट सेम मेथड. इसमें से देखते हैं सम ऑफ जीरोस अप्लाई होता है जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अप्लाई होता है, दोनों अप्लाई करके होता है, देखते हैं कैसे होता है ना. अब देखो, अल्फा इज 2 एंड बीटा इज नॉट गिवन, राइट, बट वी नो दैट व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इनटू बीटा. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, दिस इज c अपॉन a, राइट. अल्फा इज गिवन, अल्फा इज 2, तो कैन आई सब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यू 2. बीटा इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c इज k एंड a इज 1. अब यहां से हमारे पास एक कंडीशन आ गई, वो क्या है, k इज इक्वल टू 2 बीटा, राइट. अब हमारे पास बीटा नहीं है. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा. व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? दिस इज माइनस b अपॉन a माइनस 3 अपॉन 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3. तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा फ्रॉम हियर. बीटा विल बी minus 5. If beta will be minus 5, now substitute the value of beta in this value of k. You will get the value of k from here, right? अब बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दो, कितना आ जाएगा? You will get, can I solve here? k is equal to 2 multiplied by minus 5. k will be minus 10. And what is the right answer? Minus 10 is the right answer, right? ये क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं बेटा. इसमें आपको सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज करके फिर हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है. जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पहले से पढ़ रखे हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का हम बार बार यूज करते हैं, बट आपको प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा कि किस चीज़ का यूज यहाँ पे होगा, ठीक है. चलिए नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव, गिवन दैट 2 zeros ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0. अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हाउ मेनी जीरोस डू वी हैव? 3, अल्फा बीटा एंड गामा. उन्होंने बोला उसमें से 2 तो पहले से ही जीरो हैं. हमारे पास 3 जीरोस होती हैं ना, अल्फा बीटा एंड गामा. उन्होंने बोला इसमें से 2 जीरोस जीरो ही हैं, मींस अल्फा भी जीरो है और बीटा भी जीरो है. अल्फा बीटा दोनों ही जीरो हैं और आपको गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गामा. अब इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके माइंड में कुछ तो स्ट्राइक कर रहा होगा ना कि कैसे हम ये वाले क्वेश्चन में रिलेशनशिप्स बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स यूज करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गामा. तो एक बार सोचिए और सॉल्व करिए कैसे करेंगे. चलिए करते हैं. व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा? क्या होता है? सम ऑफ जीरोस इन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a. वैसे चाहे क्यूबिक हो चाहे बाय क्वाड्रेटिक हो, कोई भी हो, sum of zeros is always equal to minus b upon a. तो find out the value of minus b upon a is minus b upon a. Put the value of alpha 0 है, बीटा भी 0 है, तो गामा कितना आ गया? minus b upon a. तो third zero will be minus b upon a itself. This is a option will be our right answer, right? चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. This is first question of our exercise. In this question we have,
if one of the zeros of the quadratic polynomial, this is our given polynomial, is -3, this is the polynomial and this is the given 0, right? Then the value of k is same जो अभी हमने एग्जाम्पल किया वैसा ही क्वेश्चन है, एक जीरो गिवन है, मीन्स दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल k - 1 x² plus kx plus 1 and one of the zero is given alpha is -3. You have to find out the value of k. तो वही यूज करते हैं, sum of zeros and product of zeros. तो चलिए करिए यूज. बीटा वी डोंट हैव. What is the value of alpha plus beta? -b upon a. -b upon a. तो b क्या है इधर? k. This is -k upon k -1. k -1. What is the value of alpha? Alpha is -3. -3 plus beta is equal to -k upon k -1. Find out the value of beta from here. You will get k -1 plus 3. How we can solve it? We have to take LCM and LCM will be k -1. ये k -1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. -k will be as it is. दिस इज प्लस 3k -3. ये 3 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा ना. दिस इज 3 विल बी मल्टीप्लाइड फर्स्टली बाय k एंड विद -k ऑल्सो. यू विल गेट -k प्लस 3k प्लस -3, राइट. अब इसको सॉल्व कर लो, आपके पास बीटा का वैल्यू आ जाएगा. बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? अल्फा इज -3 एंड बीटा इज 3k minus k gives us positive 2k minus 3 upon k minus 1. अब अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. तो अब हम यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो चलिए करते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी अल्फा इंटू बीटा, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, राइट. दिस इज c अपॉन a. अल्फा कितना है हमारे पास? -3 एंड बीटा इज 2k -3 अपॉन k -1. c इज 1 एंड a इज k -1. 1 अपॉन k -1. अब बेटा एक चीज तो देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. कॉमन डिनोमिनेटर इज k -1. यू कैन कैंसल देम. वी लेफ्ट विद this is -3 multiplied by 2k -3 is equal to 1. Now solve it and find out the value of k. Now solve it for the value of k. This is -3 2k -3 is equal to 1. अब इसमें से k का वैल्यू निकालेंगे तो पहले -3 को ट्रांसपोज करते हैं. You will get 2k -3 is equal to -1 upon 3. दिस इज 2k इज इक्वल टू -1 अपॉन 3. ये 3 इधर प्लस हो जाएगा, +3. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट -1 प्लस 9 अपॉन 3 विच गिव्स अस 8 अपॉन 3. मीन्स 2k इज इक्वल टू 8 अपॉन 3. अब ये 2 इधर से ट्रांसपोज होगा तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड 1 अपॉन 2. दिस इज 4. k विल बी 4 अपॉन 3. What is the value of k? 4 upon 3. And which one is the right option? A is the right option, right? Now this is second question. What we have? A quadratic polynomial whose zeros are given -3 and 4. आपको याद है जो NCERT में क्वेश्चंस दिए थे उसमें भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने को बोला था, पर उन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए उन्होंने यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ था? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. बट इसमें उन्होंने सम और प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, इसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है? जीरोस दी हुई हैं. तो अभी आपको पहले क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट सम, प्रोडक्ट एंड देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, राइट. व्हाट इज गिवन? अल्फा इज गिवन -3 एंड बीटा इज गिवन 4. फर्स्टली फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा, दैट इज -3 plus 4 gives us 1. Now find out alpha into beta, that is -3 multiplied by 4 and alpha into beta is -12. What is the formula? K x square minus sx
प्लस p, तो k x square, what is s? s is sum of zeros and what is p? p is product of zeros. sum कितना है 1x and p is minus 12, right? Which one is the correct option? We haven't got any correct option, right? 1 minute. अब कोई ऑप्शन इसमें से मैच तो कर नहीं रहा है. दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12. अब बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, है तो हमारा आंसर करेक्ट है ना. अब हमें इसमें से ऑप्शंस को अरेंज करना पड़ेगा कि कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट रहती है. तो देखो ये तो हो नहीं सकता, माइनस और प्लस ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें दोनों साइन, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, पर हमारी पॉलिनोमियल में दोनों साइंस नेगेटिव है, ये भी नहीं हो सकता. इसमें दोनों साइंस नेगेटिव है, इसमें भी प्लस और नेगेटिव है, ये भी नहीं हो सकता. अब एक ऑप्शन बचा ये वाला, इसको अरेंज करके देखते हैं. वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 6. टेक कॉमन डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे k का वैल्यू इन्होंने कितना ले लिया, k विल बी 2. अगर आप यहाँ पे k का वैल्यू 2 लेते हो, जब आप k का वैल्यू यहाँ पे 2 लोगे, पहले तो यहाँ पे k हम हमेशा ही लेके चलते हैं, k की वैल्यू जब 2 आएगी तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल कितनी आ जाएगी, माइनस एक्स माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. इज इट क्लियर? चलिए लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज माइनस एक्स, दिस इज 12. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट? दिस वन ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन. एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हमेशा ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं. तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ना थोड़ा ध्यान से सॉल्व किया करिए, ठीक है? और ज़रूर करनी है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस. इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and माइनस 3. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी, राइट? और इसकी जीरोज हमें क्या दे रखी हैं, अल्फा इज 2 एंड बीटा इज माइनस 3. और आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है, इसमें से कौन सी करेक्ट होगी. एक ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए चलिए करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले वी हैव टू डू सम ऑफ जीरोस. अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए. बी कितना है, माइनस ए प्लस 1. कीप इट इन अ ब्रैकेट बिकॉज साइंस मैटर करते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अदरवाइज गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है? अल्फा इज 2 एंड बीटा इज माइनस 3. दिस इज माइनस ए प्लस 1. अब इनको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 ब्रैकेट, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस दोनों में से कॉमन था. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए इज 1 माइनस 1, ए विल बी 0. अब ए का वैल्यू आपके पास 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली दिस वन ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, क्योंकि और किसी में हमारे पास ए का वैल्यू 0 है नहीं है. पर चलिए बी का वैल्यू भी चेक करके देख लेते हैं. व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, और यहाँ पे सी कितना है, बी. तो यू कैन राइट इट एज अल्फा इंटू बीटा इज बी अपॉन ए इज 1. तो अल्फा इंटू बीटा इज बी, दैट इज 2 multiplied by minus 3 b and b is minus 6 and this is the correct option, right? वैसे तो हमें a का वैल्यू निकालते ही हमें आंसर पता चल गया था कि यही वाला है, बट फिर भी हमने अपने आंसर की श्योरिटी के लिए यहाँ पे b का वैल्यू भी निकाल लिया. तो a is 0 and b is minus 6. Okay, our next question is the number of polynomials having zeros as minus 2 and 5 is. ऐसी कितनी पॉलिनोमियल्स हैं जिसकी जीरोस माइनस 2 और 5 हो सकती हैं, है ना? अब बेटा ऐसी कितनी पॉलिनोमियल्स हैं, एक पॉलिनोमियल है, 2 पॉलिनोमियल्स, 3 पॉलिनोमियल्स और मोर देन 3 पॉलिनोमियल्स. अब ये क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो हम पॉलिनोमियल बना के उसके साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं. सेकेंड इज, डू यू रिमेंबर द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल्स? मीन्स जितनी बार उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है उन पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारी जीरोज होती हैं, राइट? अब मान लो अगर ये 2 जीरोज हैं, वन इज माइनस 2, वन इज माइनस 2, दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज माइनस 2 एंड अनदर वन इज 5, 1
2, 3, 4 and 5। अब ऐसे कितने ग्राफ्स हो सकते हैं जो -2 और 5 में से पास करते होंगे, राइट? अब हो सकता है एक पैराबोला आप ऐसे बनाओ, ये भी -2 और 5 में से पास करेगा, ठीक है। हो सकता है एक पैराबोला ऐसे भी बनता हो जो इसमें से पास करेगा। हाउ मेनी सच ग्राफ्स वी कैन ड्रॉ। अब कोई पैराबोला ऐसा भी हो सकता है इन दोनों पॉइंट से पास करे पर उसकी मिनिमम वैल्यू कुछ और हो, राइट? हाउ मेनी सच ग्राफ्स वी कैन ड्रॉ? इनफिनाइटली मैनी नंबर्स, इनफिनाइटली मैनी सच ग्राफ्स वी कैन ड्रॉ। तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनकी जीरोस -2 और 5 हो सकती है? मोर देन 3 विल बी द आंसर। अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताती हूँ कैसे कर सकते हैं। Do you remember how we can find out the polynomial if alpha is -2, beta is 5, right? Then we know that alpha plus beta, s is -2 plus 5, that is +3, and alpha into beta, that is -2 and 5, it gives us alpha into beta is -10. This is our p. Now our polynomial will be k x square minus sx, this is 3x minus 10। अब ये k का यही तो रोल है बेटा यहाँ पे। अब आप k की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी ले लो, कुछ भी, कोई भी k की वैल्यू ले लो, पर उसमें -2 और 5 सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। आप k की वैल्यू यहाँ पे 1 ली तो इसमें तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। अब आप k की वैल्यू यहाँ पे 2 लेके देख लो। चलो मैं k की वैल्यू 2 लेती हूँ। दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर -3x -10। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2x स्क्वायर, 2 3 = 6x -10। अब इसमें 2 पुट करके देखो, -2 सेटिस्फाई करता है। दिस इज 2 -2 स्क्वायर इज 4, -6 मल्टीप्लाई बाय -2 -10, इट इज 4 2 = 8, minus plus 12, this is minus, 1 minute, नहीं हमने यहाँ पे गलती कर दी है। दिस इज 2x स्क्वायर, 2 3s and this will be 2 10s 20, this will be 20, right? Now you can see this is 20 minus 20 and it gives us 0। अब आप k की कोई भी वैल्यू यहाँ पे लेके देख लो, 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहे आपने k की वैल्यू मान लो 3 लिया है तो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 9x, 3 10s 30। अब आप इसमें k की वैल्यू -2 या 5 पुट करके देख लो। इसमें 5 भी सेटिस्फाई करेगा बेटा, दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी। अब यही तो बात है कि k हम कोई भी कोफिशिएंट ले सकते हैं, राइट? k हम कोई भी यहाँ पे k की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो ऐसी एक इक्वेशन नहीं बनती है, हमारे पास कितनी इक्वेशंस बनती है? इनफिनाइटली मैनी इक्वेशंस। तो दैट्स व्हाई आंसर विल बी मोर देन 3, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। Given that one of the zeros of the cubic polynomial, this is our cubic polynomial ax cube plus bx plus cx plus d, bx square plus cx plus d is 0, the product of the other two zeros is, this is the standard form of the cubic polynomial। उन्होंने बोला उसकी एक जीरो जो है ना वो 0 है, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है? द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस मीन्स अल्फा, बीटा और गामा, इसकी 3 जीरोस होती हैं, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होता है। अब उन्होंने बोला है इसमें से एक जीरो जो है वो 0 है, मीन्स अल्फा उन्होंने पहले से ही 0 दे रखा है। अगर अल्फा इज 0, बीटा मल्टीप्लाई बाय गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। You have to find out the product of other two zeros. How we can find out? अब यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन बन गई, that is 0 is equal to minus d upon a. What does it means? Minus d का वैल्यू कितनी आ गया हमारे पास? 0 आ गया, बट हमें इन दोनों का प्रोडक्ट तो पता नहीं चला ना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? अब सम ऑफ जीरो से भी हमें इसका प्रोडक्ट नहीं पता चलेगा, हमें तो 2 जीरोस का प्रोडक्ट निकालना है। तो वी कैन यूज है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा।
What is the sum of product of zeros taken two at a time in a cubic polynomial? That is C upon A. Positive C upon A. Right. Now from here, what is the value of alpha? 0. 0 multiplied by beta plus beta gamma plus gamma multiplied by 0 is equal to C upon A. तो ये भी 0 हो गया plus beta gamma plus 0 is equal to C upon A. तो यहाँ से बीटा गामा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? C upon A. What is the right answer? This B option is the correct answer. Let's move on our next question. Okay, now let's do this question. If one of the zeros of the cubic polynomial is -1, अब ये cubic polynomial दिया है, ध्यान से देखो, this is not in a standard form. This is x cube plus ax square plus bx plus c. इसकी एक जीरो दे रखी है, अल्फा इज -1. देन यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस. आपने क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट बीटा इंटू गामा. राइट, दिस यू हैव टू फाइंड आउट. राइट, हाउ वी कैन डू दिस? चलिए बेटा वहीं से स्टार्ट करते हैं. प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. क्योंकि लास्ट क्वेश्चन भी सेम था तो इसी से सॉल्व हुआ था, इसमें भी इसकी नीड तो होगी जरूर, है ना. तो व्हाट इज इट्स वैल्यू? इट्स वैल्यू इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. सी अपॉन ए होता है ना, तो यहाँ पे सी कितना है? बी अपॉन ए इज 1. राइट, तो इट्स वैल्यू विल बी बी. अब अल्फा कितना दिए रखा है? -1. तो कैन आई राइट इट एज माइनस बीटा प्लस बीटा गामा. दिस इज माइनस गामा इज इक्वल टू बी. बीटा गामा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को ट्रांसपोज कर लेते हैं. बी प्लस बीटा प्लस गामा. अब हमारे पास इसका वैल्यू चाहिए, तभी हमारे पास बीटा गामा का वैल्यू आएगा. किसका वैल्यू चाहिए? बीटा प्लस गामा का. वी नो दैट सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए. तो यहाँ पे b कितना है? दिस इज a. दिस इज -a अपॉन 1. -a विल बी देयर. बीटा प्लस गामा का वैल्यू पुट करो यहाँ पे. अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा इज -1 प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -a. यहाँ से बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा? -a प्लस 1. वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. यू विल गेट बीटा गामा इज इक्वल टू b -a प्लस 1. b minus a plus 1. Which one is the right option? b minus a plus 1. This is the correct answer. Right, hope it is clear. Let's move on our next question. Okay, now let's discuss this question. Very good question this is. The zeros of the quadratic polynomial x square plus 99x plus 127 are both positive, both negative, one positive, one negative, both equal. अब कैसे पता चलेगा कि इसकी जीरोस क्या है ना. कुछ बच्चे तो बोलेंगे कि इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं, सॉल्व करते हैं और हमारे पास जीरोस आ जाएंगी. डू यू नो दैट 127 इज अ प्राइम नंबर एंड हेयर यू कांट स्प्लिट द मिडल टर्म. 127 के फैक्टर्स ही नहीं बनते. इसमें इसके साथ एक फैक्टर 126 आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आ जाएगा. तो माइनस करोगे तो 126 आ सकता है, प्लस करोगे तो 128 आ सकता है. तो ये तो फैक्टराइज होता ही नहीं है. मीन्स आप इस पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व नहीं कर सकते. अब कैसे डिसाइड करोगे कि इसकी जीरोस दोनों पॉजिटिव होंगी, दोनों नेगेटिव होंगी, एक पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी, या फिर दोनों इक्वल होंगी? हाउ वी कैन डिसाइड? राइट, अब देखो बेटा, अब हमारे पास यहाँ पे दो नंबर्स हैं. इतना तो हमें पता है ना, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 zeros विल बी देयर, अल्फा एंड बीटा. राइट, अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकालते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है? दिस इज -99. अल्फा प्लस बीटा इज -99. माइनस बी अपॉन ए होता है ना, तो -99. अल्फा इंटू बीटा इज 127. अब आपके पास सिर्फ यही दो कंडीशंस बनती हैं. इन्हीं दो कंडीशंस के बेस पे आप डिसाइड करोगे कि आपकी जीरोस किस तरह की हो सकती हैं. एक कौन सा रिजल्ट है इसमें से जो इन दोनों के लिए ट्रू हो रहा है? देखो, अगर तो आप बोलो कि दोनों की जीरोस सेम होंगी, मीन्स अल्फा एंड बीटा सेम है, इक्वल है, तो आप देखो इक्वल होता तो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता,
पर यहाँ पे तो नहीं बन रहा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। अगर ये दोनों जीरोज इक्वल होती तो इन दोनों का प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता। तो 127 इज अ प्राइम नंबर, ये वाली ऑप्शन तो गलत हो गई। अब रहेगी बाकी की 3 ऑप्शंस। अब इनमें से देखो, इन दोनों का सम -99 है और इन दोनों का प्रोडक्ट एक पॉजिटिव नंबर है। इन दोनों का सम एक नेगेटिव नंबर है और प्रोडक्ट एक पॉजिटिव नंबर है। मींस अगर इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ से एक कंडीशन बनती है, जहां तो दोनों जीरोस पॉजिटिव हैं, जहां फिर दोनों जीरोस नेगेटिव है। इज इट ट्रू? जहां तो दोनों जीरोस, दो नंबर्स का सम पॉजिटिव कब हो सकता है बेटा? जहां तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव गिव्स अस पॉजिटिव, और नेगेटिव एंड नेगेटिव गिव्स अस पॉजिटिव। तो एक कंडीशन तो यहाँ से ट्रू हो गई कि जहाँ तो दोनों पॉजिटिव है जहाँ फिर दोनों नेगेटिव है। तो ये वाली कंडीशन तो गलत हो गई कि 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव हो नहीं सकता। अब इन दोनों में से देखते हैं। अब इन दोनों में से यहाँ से तो 2 ऑप्शंस मिल रही हैं। यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव होते तो इनका सम एक नेगेटिव नंबर हो सकता था? नो, नहीं हो सकता था ना। इसका मतलब ये दोनों नंबर्स कौन से नंबर्स थे? नेगेटिव थे, तभी उनका सम नेगेटिव बना और उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव बना। इज इट क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें से? बोथ नेगेटिव। रेस्ट ऑल 3 ऑप्शंस आर रॉन्ग। इसके सिवा तुम ऐसे भी देख, एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर हमारे पास ए, बी और सी तीनों ही पॉजिटिव आते हैं ना बेटा, ए, बी और सी, इफ ऑल 3 आर पॉजिटिव तो दोनों जीरोस क्या होती हैं? नेगेटिव। जहां फिर ए, बी और सी तीनों ही नेगेटिव होते हैं, ऑल 3 आर नेगेटिव, तब भी दोनों जीरोस क्या होती हैं? नेगेटिव भी होती हैं। मींस अगर तीनों के साथ सेम साइन है तो दोनों जीरोस क्या आती हैं? बोथ जीरोस विल बी नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो ये कंडीशन तो सबसे अच्छी है। आप इसका सम निकाल के देखिए, प्रोडक्ट निकाल के देखिए, फिर देखिए इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू बैठ रही है। ओके, लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. The zeros of the quadratic polynomial x square plus kx plus k where k is not equal to 0. ये तो उन्होंने दे रखा है कि k 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। cannot both be positive, cannot both be negative, are always unequal, are always equal. अब ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है। वैसे तो अगर हम लास्ट क्वेश्चन के साथ इसको देखें तो आपको इसका आंसर ये तो पता चल जाएगा कि कैन नॉट बी बोथ द नेगेटिव, क्योंकि इसमें देखो तीनों के साइंस सेम है। ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है। जब हमारे पास ए भी ग्रेटर देन 0 होता है, बी भी ग्रेटर देन 0 होता है, सी भी ग्रेटर देन 0 होता है, जहाँ फिर ए भी लेस देन 0 होता है, बी भी लेस देन 0 होता है, सी भी लेस देन 0 होता है। मीन्स तीनों या तो पॉजिटिव होते हैं, तीनों नेगेटिव होते हैं। तो हमारे पास दोनों जीरो कौन सी आती हैं? नेगेटिव आती हैं। पर उन्होंने बोला कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना। अब बेटा इसको करेंगे कैसे? देखो, सम ऑफ जीरोस ले लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के। अब उन्होंने बोला कि आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। इसमें से सही ऑप्शन कौन सी है? दोनों जीरोस पॉजिटिव नहीं हो सकती, जहाँ फिर ये हमेशा ही दोनों जीरोस इक्वल होंगी, जहाँ फिर दोनों जीरोस अनइक्वल होंगी, जहाँ फिर दोनों जीरोस क्या होंगी? इक्वल होंगी। अब इसमें से सबसे सही ऑप्शन कौन सी है ना। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 2 नंबर्स हैं जिनका सम एक नेगेटिव नंबर है और 2 नंबर्स हैं सेम जिनका प्रोडक्ट एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है जहाँ तो दोनों जीरोस पॉजिटिव होंगी, जहाँ फिर दोनों जीरोस नेगेटिव होंगी, राइट। ये ऑप्शन भी गलत। ये वाला ऑप्शन है कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, ये वाली ऑप्शन कि दोनों जीरोस कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, दोनों जीरोस पॉजिटिव नहीं हो सकती, ये वाली ऑप्शन आपको करेक्ट लगती है कि रॉन्ग लगती है? दोनों जीरोस पॉजिटिव नहीं हो सकती। चलिए इस पर बाद में बात करते हैं। आर अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। अच्छा, अब आप बताओ कि ऐसे हमारे पास कोई 2 नंबर्स हैं जिनका सम जो होता है वो और उनका प्रोडक्ट, उनका सम जो है वो नेगेटिव के इक्वल है, मींस उनका प्रोडक्ट के इक्वल है। आपने ऐसे 2 नंबर्स बताने हैं जिनको आप सम करोगे तो आपके पास माइनस के आंसर आना चाहिए, और जिनके आप प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास के आंसर आना चाहिए। ऐसा हमारे पास एक ही पेयर बनता है वैसे देखा जाए तो।
दैट इज -2 एंड -2। जब आप इनका सम करोगे तो आपके पास नंबर आएगा -4, और जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे -2 एंड -2 यू विल गेट +4, राइट। इसके सिवा हमारे पास कोई और नंबर है ही नहीं है, और ऐसा तो है नहीं है कि बस इसका यही एक आंसर हो सकता है, ये हमेशा ही इक्वल होंगे। हमें तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, ये तो हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, ठीक है। एक ही हमारे पास ऐसा पेयर बनता है -2 और -2 का, जिसको आप ऐड करोगे तो -4 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। पर ऐसा तो नहीं है ना बेटा, ये तो तभी ट्रू होगा जब k की वैल्यू यहाँ पे -4 और -4 हम पुट करेंगे। पर अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाती है x² + 3x + 3, तो उसमें तो अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू -2 सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर यहाँ पे k की वैल्यू आ जाती है x² + 5x + 5, k तो कुछ भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे तो -2 और -2 सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये तो सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करती है, किसके लिए, जब k की वैल्यू -4 और -4 होगी। तो उन्होंने बोला आर ऑलवेज अनइक्वल, या फिर और ऑलवेज इक्वल, और ऑलवेज इक्वल वाली हमेशा इक्वल नहीं हो सकती। एक कंडीशन में हो गया बट इट इज नॉट ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं हो सकती। आर ऑलवेज अनइक्वल, इसके लिए भी हम कुछ नहीं बता सकते, बट इसमें से ये वाली ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, क्योंकि दोनों जीरोस पॉजिटिव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो दोनों पॉजिटिव हो गई ना तो उनका सम जो है वो नेगेटिव नहीं आएगा, और अगर दोनों पॉजिटिव है उनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आ जाएगा, पर अगर वो दोनों पॉजिटिव हो गई तो उनका सम नेगेटिव नहीं आ सकता। हमारा क्वेश्चन तो यहीं से ही सारा सॉल्व हो जाता है कि ये वाली ऑप्शन सही है, because their sum is a negative number. If their sum is a negative number, both the zeros cannot be positive. दोनों zeros इकट्ठी पॉजिटिव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव हुई तो उनका सम जो है वो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। Now next question is, if the zeros of the quadratic polynomial are equal, तो इसमें से कौन सा कंडीशन ट्रू है? C and A have opposite signs, C and B have opposite signs, C and A have same signs, C and B have same signs। अब इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है, कैसे करेंगे? हमें दिया है जीरोस इसकी इक्वल है, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, राइट। मीन्स अल्फा, दोनों जीरोस हम अल्फा अल्फा कंसिडर कर लें, तो इट्स बोथ जीरोस विल बी अल्फा एंड अल्फा। लेट्स फाइंड आउट सम ऑफ जीरोस। Alpha plus alpha is equal to -b upon a, that is -b upon a। तो can we write it as 2 alpha is equal to -b upon a। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -b upon 2a, राइट। सेकेंड कंडीशन इज अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा दैट इज अल्फा स्क्वायर इज c upon a। अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, दिस इज -b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन a। जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो आपके पास क्या आएगा, यू विल गेट है b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन a। इसको सॉल्व कर लो, इस स्क्वायर से ये वाला a डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब बेटा यहाँ से ना आपको ये चीज़ थोड़ी सी अरेंज करनी पड़ेगी, हाउ वी कैन अरेंज इट। ये यहाँ पे ना विजिबल नहीं है, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। लेट मी राइट है, दिस इज b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac आपके पास बन गया है ना। जब आपने इस 4a को इधर मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब यहाँ से कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है ना, तो हम एक चीज कर देते हैं, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ac। कैन वी राइट इट एज b अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ac। व्हाट डज इट मीन्स? अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि a और c का प्रोडक्ट किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा रहा है, और आपको पता है जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता, वो हमेशा कौन सा आंसर देता है, पॉजिटिव आंसर देता है। व्हाट डज इट मीन्स? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a और c का प्रोडक्ट एक पॉजिटिव नंबर ही होगा,
क्योंकि वो किसी नंबर के स्क्वायर के इक्वल है। बी की वैल्यू जो मर्जी हो जाए पर ए और बी का प्रोडक्ट एक पॉजिटिव नंबर आंसर देगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। अब अगर ए और सी का प्रोडक्ट एक पॉजिटिव नंबर आंसर देगा, ये कब पॉसिबल है बेटा? आपको लगता है ये तब पॉसिबल है जब ए एंड सी हैव ऑपोजिट साइंस। जब ए और सी के साइंस ऑपोजिट होंगे, एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, तब आपको लगता है कि इन दोनों का आंसर एक पॉजिटिव नंबर आ सकता है? नो। सी एंड बी हैव पॉजिटिव साइन। हमें तो ए और सी के साइन को कंपेयर करना है। बी का साइन तो कुछ भी हो, बी के साइन का तो स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ इम्पैक्ट ही नहीं है, तो ये वाला तो है ही नहीं। ए एंड सी हैव सेम साइंस, यस दिस कैन बी। जहां तो ए और सी दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव नंबर देगा, जहां फिर ए और सी दोनों नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। इसका मतलब ए और सी के साइंस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। बी का साइन डजेंट मैटर, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बट ए और सी दोनों के साइन अगर पॉजिटिव होंगे तो इसकी जीरोज इक्वल हो सकती हैं, राइट? बी के साइन का इंपैक्ट नहीं पड़ता है, किसके साइन का इंपैक्ट होता है? ए एंड सी, बिकॉज ए और सी का प्रोडक्ट हमारे पास किसी नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ए और सी का प्रोडक्ट हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर बन रहा है, और वो तभी पॉसिबल है जब ए और सी का साइन सेम होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। नेगेटिव होगा तो भी माइनस माइनस प्लस बनेगा, पॉजिटिव होगा तो भी प्लस बनेगा। तो ए और सी का साइन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दिस विल बी द राइट आंसर, राइट? लेट्स डू दिस सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। If one of the zeros of the quadratic polynomial of the form, ये हमारी quadratic polynomial है, is the negative of the other, उन्होंने बोले एक जीरो जो है वो दूसरी जीरो की नेगेटिव है। अगर एक जीरो दूसरी जीरो की नेगेटिव है तो आपने बताना है उसमें किस तरह की कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। हैज नो लीनियर टर्म। लीनियर टर्म मीन्स जिसके साथ x लगा होता है, x की पावर 1 होती है, वो वाली टर्म उस पॉलिनोमियल में एब्सेंट होगी, एंड द कांस्टेंट टर्म विल बी नेगेटिव, और उसकी कांस्टेंट टर्म जो होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। हैज नो लीनियर टर्म एंड हैज द कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, उसमें लीनियर टर्म एब्सेंट होगी और कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होगी। कैन हैव लीनियर टर्म, उसकी लीनियर टर्म हो सकती है बट द कांस्टेंट टर्म विल बी नेगेटिव, पर कांस्टेंट टर्म क्या होगी? नेगेटिव होगी। कैन हैव लीनियर टर्म, लीनियर टर्म हो सकती है बट कांस्टेंट टर्म विल बी पॉजिटिव। अब इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होती है? गिवन पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अब उन्होंने क्या बोला है? अगर उसकी एक जीरो अल्फा है तो बीटा कितना है हमारे पास? माइनस अल्फा। मीन्स इसकी टू जीरोस कौन सी हैं? अल्फा एंड माइनस अल्फा। वन ऑफ द जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है। मीन्स इफ वन इज अल्फा अनदर वन इज माइनस अल्फा। अब इनका सम निकाल लेते हैं बेटा। सम विल बी अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। मीन्स अगर ए की वैल्यू जीरो है तो ये टर्म तो क्या हो गई? बीच में से एब्सेंट हो गई ना, ये टर्म तो हो ही नहीं सकती ना इसमें। ए की वैल्यू जीरो हो गई तो ये टर्म तो खत्म हो गई है ना, तो इट मीन्स वी डोंट हैव दिस टर्म। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। व्हाट डज इट मीन्स? कि हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट, ये जो लीनियर टर्म है ये तो खत्म होगी, उसके साथ ही ये दोनों ऑप्शंस क्या हो गई? कैंसिल हो गई। अब एक चीज हमें और डिसाइड करनी है कि इसमें से लीनियर टर्म तो नहीं है, हैज नो लीनियर टर्म, हैज नो लीनियर टर्म। अब हमें एक चीज और देखना है कि कांस्टेंट टर्म जो है वो नेगेटिव रहती है या पॉजिटिव रहती है, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं? अब इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट विल बी अल्फा इनटू बीटा, दैट इज अल्फा मल्टीप्लाई बाय माइनस अल्फा, दैट इज माइनस अल्फा स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू बी माइनस अल्फा स्क्वायर। किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए। तो सी कितना है यहाँ पे? बी। व्हाट डज इट मीन्स? अल्फा स्क्वायर इज अ नेगेटिव नंबर। बी यहाँ पे कौन सा नंबर होगा? एक नेगेटिव नंबर होगा, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बन रही हैं वो हमारे पास एक कौन सा नंबर बन रहा है? नेगेटिव नंबर बन रहा है। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक नेगेटिव नंबर बन रहा है, इसका मतलब बी जो है वो कौन सा नंबर होगा? नेगेटिव। तो ये वाली ऑप्शन रॉन्ग हो गई। वी हैव द करेक्ट आंसर हैज नो लीनियर टर्म। इसमें लीनियर टर्म एब्सेंट होगी क्योंकि हमारा ए जीरो हो गया है, एंड द कांस्टेंट टर्म विल बी नेगेटिव, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म बी होगी वो क्या होगी? नेगेटिव नंबर होगी। नाउ लेट्स डू आवर लास्ट क्वेश्चन।
Last question is very simple question. These four graphs are given to you and the question is which of the following is not the graph of the quadratic polynomial. इसमें से quadratic polynomial का ग्राफ कौन सा नहीं हो सकता है ना. अब बेटा देखो, quadratic polynomial can have maximum how many zeros? 2, because its degree is 2. If maximum we have 2 zeros, तो then how its graph can intersect x axis 3 times. 3 times तो नहीं कर सकता ना. अब यहाँ पे देखो इसका ग्राफ कितनी बार x axis को intersect कर रहा है? 3 times. Quadratic polynomial can have maximum 2 zeros. तो maximum 2 zeros means its graph can't intersect x axis more than 2 times. तो ये वाली कंडीशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है. रेस्ट ऑल कैन बी द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. थैंक यू. होप यू अंडरस्टैंड. Thank you everyone.